Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our lesson number 2 of subject science class 8. Okay, subject science, and the name of the topic is some common gases. Okay, this is our lesson number 2 and the name of the lesson is some common gases. In this lesson we read about some important gases, their function, their uses, their importance. Okay, now come to the first question. This is my question. What is air? Do you know what is air? Air क्या है? आंसर है इसका air is a mixture of many gases. Okay, I repeat, air is a mixture of many gases. It means air जो है वो एक mixture है बहुत सारी गैसेस का. बहुत सारी गैसेस जब मिक्सअप होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो एयर मेक एयर. ओके, तो एयर जो है वो मिक्सचर है ऑफ मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट गैसेस. सम कॉमन गैसेस इन ड्राई एयर आर. इसमें जो कुछ सब कॉमन गैसेस हैं जो आप जानते हैं, जिनके नाम वो कौन कौन सी हैं. सम कॉमन गैसेस इन ड्राई एयर आर. नंबर 1 ऑक्सीजन, एज यू ऑल नो ऑक्सीजन. नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड. Number 3 nitrogen, and number 4 argon. Okay, these are the common gases in dry air. I repeat, these are oxygen, carbon dioxide, nitrogen, argon. Okay. Now you all know that all the living things respire. Do you know? Okay, very good. You all know that all the living things respire. जितने भी living things हैं वो क्या करते हैं? Respire करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं. During this process, the process of respiration, during this process they take in oxygen. क्या अंदर inhale करते हैं? They take in oxygen gas and give out carbon dioxide gas. Okay? They take in oxygen gas. All the living things during the process of respiration, they take in oxygen and give out carbon dioxide gas. As we all know that without oxygen they cannot respire. Oxygen is the very necessary gas for the process of respiration for all the living things. Without oxygen they cannot respire, and if they do not respire, अगर वो सांस नहीं ले सकेंगे तो they will die. Okay, so all the living things need oxygen gas to respire, to live in this earth. Okay, without oxygen they will die. Now come to what is oxygen gas. Oxygen gas क्या है? What is oxygen gas? Okay, so the answer is oxygen forms a gas that is composed of. Oxygen ऐसी गैस से बनी है that is composed of जो molecules consisting of 2 oxygen atom. ऐसे गैस है जिसमें molecules हैं of तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इसीलिए हम इसे O2 कहते हैं. क्या कहते हैं? O2. आई रिपीट, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ गैस दैट इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स. दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी O2. ओके, दिस इज कॉल्ड अ डायएटॉमिक गैस. दिस इज आल्सो नोन to be a diatomic gas. इसे diatomic gas भी कहते हैं. In this form, oxygen is a, और इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है is a colorless. कलरलेस
कोई कलर नहीं होता, ओडरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। ओके, इन दिस फॉर्म, आई रिपीट, इन दिस फॉर्म ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, odorless and tasteless gas. Oxygen also exists as the allotrope ozone. It also exists as the allotrope ozone, and then it is said to be O3. Okay. Oxygen is present in the air at about 21%. How many percent? 21% by volume in the free state. It means ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है हवा में, एयर में, at about 21% by volume in the free state. Okay, this is the answer of the question, what is oxygen gas? Okay. Now come to laboratory preparation of oxygen. Okay, there are several methods for the preparation of oxygen in the laboratory. बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं in the laboratory. Two of the most common methods are given below. Okay, number one, by passing electricity through water. Number two, from potassium chloride. Now today we learn about by the first method, the passing electricity through water. The first method we will consider for preparing oxygen is by using water. इसमें हम पानी यूज़ करेंगे. When we pass electricity through water, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पानी के थ्रू पास करेंगे, which has a few drops of an acid, जिसमें हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे एसिड के. एग्जाम्पल, कौन सा एसिड डालेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, इन इट वाटर इज डीकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. तो जैसे ही हम ये एसिड डालेंगे तो वाटर जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. कम टू द एक्टिविटी. टेक अ वोल्टमीटर, फिल इट हाफ विथ वाटर. एक बीकर लेंगे और उसे हाफ फिल करेंगे पानी से, एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू इट. और उसमें चंद कतरे सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे. फिल 2 टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर. फिर 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जिन्हें पानी से फिल करेंगे, एंड इन्वर्ट दैम ऑन ईच इलेक्ट्रोड ऑफ द वोल्टमीटर. और फिर उन्हें इन्वर्ट कर देंगे एज यू सी इन दिस पिक्चर इन द बीकर. इसको इन्वर्ट करेंगे, ये जो 2 वोल्टमीटर के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके ऊपर से इन्वर्ट कर देंगे. ओके, join the electrodes to the terminal of 6 volt battery through a bulb. फिर इन इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन कर देंगे थ्रू अ बैटरी एंड देन थ्रू अ बल्ब. द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब, अगर बल्ब जलेगा, जैसे ही बल्ब लाइट अप होगा, इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द सर्किट इंक्लूडिंग द वाटर. तो ये इससे बात शो होगी दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है थ्रू द सर्किट, जिसमें इंक्लूडिंग द वाटर, पानी में से पास हो रही है. इसी वजह से ये बल्ब जो है वो लाइट अप होगा. ओके, एज द इलेक्ट्रिसिटी पासिस, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू वाटर, गैसेस विल बी कलेक्टेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी पानी के ज़रिए जो गैसेस डिस्चार्ज होंगी, दे विल बी कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब्स. तो ये जो 2 टेस्ट ट्यूब्स हमने लगाई हैं इसमें ये गैसेस जमा होना शुरू हो जाएंगी. डू यू नो वॉट दीज गैसेज आर? क्या आपको पता है कि ये कौन सी गैसेज होंगी जो इन 2 टेस्ट ट्यूब्स में जमा होंगी? होल्ड अ बर्निंग मैच स्टिक. एक मैच स्टिक लेंगे जलती हुई नियर द माउथ ऑफ बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उन्हें टेस्ट ट्यूब के माउथ तक, मुंह तक लेकर जाएंगे. नंबर 1, द गैस विच बर्न्स विद अ बैंग इज हाइड्रोजन गैस. नोट दैट द मैच स्टॉप बर्निंग. जैसे ही अगर उसमें हाइड्रोजन गैस होगी तो जो है वो जलना, हाइड्रोजन गैस, नोट दैट द मैच स्टॉप्स बर्निंग. तो जो तीली जो आपने जो मैच स्टिक लगाई होगी वो स्टॉप हो जाएगी.
द गैस इन विच द मैच स्टिक बर्न्स मोर ब्राइटली इज ऑक्सीजन गैस। और वो गैस जिसमें ऑक्सीजन होगी, वो ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जिसमें ऑक्सीजन होगी, तो मैच स्टिक जो है वो मोर ब्राइटली जलने लगेगी और स्टॉप नहीं होगी। ओके, तो जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी तो मैच स्टिक जो है वो बुझ जाएगी, और वो जिस टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन गैस होगी तो वो टेस्ट ट्यूब पे जो है वो बर्न करने लगेगी मोर ब्राइटली। दिस शोज़ दैट वाटर इज़ कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये हमें बताता है कि पानी बना है, वाटर जो हमारा है वो बना है हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ओके, properties of oxygen. Now we read about properties of oxygen. First, there are two types of physical properties and chemical properties. First, we read about physical properties of oxygen. Okay, number one, oxygen is a colorless, as I told you earlier in the definition. Oxygen is a colorless, odorless and tasteless gas. ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती और कोई टेस्ट नहीं होता। नंबर टू, इट डज नॉट बर्न बट सपोर्ट्स कंबर्शन। वो जो है जलती नहीं है बट कंबर्शन में आपको हेल्प करती है। नंबर थ्री, इट लिक्विफाइज एट 183 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विफाइड हो जाती है 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड सॉलिडिफाइज एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड द लास्ट वन, इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। और वो थोड़ी सी पानी में सॉल्यूबल हो जाती है। दीज आर द 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। नाउ कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मेटल सच एज सोडियम Na, magnesium Mg and iron Fe react with oxygen to form their oxides. They react with oxygen, और जब वो उनको ऐड किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। दीज ऑक्साइड्स टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। और इन्हीं ऑक्साइड के बदलने से, चेंज होने से, जब वो ऑक्साइड्स में चेंज होते हैं तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो जाता है, ब्लू। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मिक्स मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन it will makes magnesium oxide. Okay, magnesium with oxygen makes magnesium oxide. And number two, sodium plus oxygen. When we will mix sodium plus oxygen, it will make sodium peroxide. Now we read about reaction with non-metals. Non-metals के साथ किस तरह react करता है? Oxygen reacts with non-metals such as carbon C, phosphorus P and sulfur S to give their oxides, और अपने oxides बनाते हैं। These oxides are acidic. They are acidic in character as they turn moist blue litmus paper red. As they turn moist blue, मतलब थोड़ा सा moist होता है blue litmus paper, they turn it into red. Okay. Now, these are the example. When we add sulfur plus oxygen, it will make sulfur dioxide. Okay. Number two, phosphorus plus oxygen, phosphorus pentoxide. And the last one, carbon plus oxygen, carbon dioxide. Okay, now we read about uses of oxygen. Okay. These are the uses. Number one, oxygen gas is used. कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं? Number one, for respiration. As I told you earlier, सांस लेने के लिए respiration of animals and plants. चाहे वो animals में हो and plants also. I'll repeat. For oxygen gas is used for respiration of animals and plants. Number two, the oxygen gas is used for the formation of oxyacetylene flame for welding. It is also used to form an oxyacetylene flame which we use for welding all the things. Okay. And then number three, oxygen gas is used in the fuel of space rocket. Space पे जो rockets जाते हैं उनके fuel में भी oxygen gas use होती है. And the last one, it is used in the manufacture of chemicals.
or this gas is also used in the manufacture of some chemicals. So these are the uses of oxygen gas. Now, today we read about what is carbon dioxide gas. Okay, what is carbon dioxide gas? Carbon dioxide, CO2, as you all know. Carbon dioxide is a gas, जैसे कि आपको पता है, it is a gas which is made by, जो कि बनी है one atom of carbon, जिसमें एक एटम है कार्बन का and two atoms of oxygen, और दो एटम्स हैं किसके? ऑक्सीजन के. Okay, I repeat, carbon dioxide is a gas which is made by one atom of carbon and two atoms of oxygen. Okay, air contains, हवा में होते हैं, कितने होते हैं? 0.03%. I repeat, air contains 0.03% of carbon dioxide, CO2, in the free state. Okay, while in the combined state it is mostly found as, combined state में किस तरह पाई जाती है? as limestone, जिसका फॉर्मूला है CaCO3. Okay, I repeat, air contains 0.03% of CO2 in the free state, while in the combined state it is mostly found as limestone, CaCO3. This is the definition of carbon dioxide. Now, how it is prepared? Preparation of carbon dioxide. Okay, carbonates क्या है? Carbonates यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड बाइकार्बोनेट्स, बाय यानी कि टू, कार्बोनेट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बोनेट्स यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एंड बाइकार्बोनेट्स टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऑफ ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, अगर उन्हें वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. सारे जितने भी कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं, वो सब ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं, रिएक्ट करते हैं विद डाइल्यूट एसिड टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एज यू सी इन दिस इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अ डाइल्यूट एसिड, कार्बोनेट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स अस carbon dioxide plus calcium chloride and plus water. I repeat, calcium carbonate plus hydrochloric acid gives us carbon dioxide plus calcium chloride plus water. Now today we read about properties of carbon dioxide. Okay, first we read physical properties, then chemical properties. Physical properties. Number 1, carbon dioxide is a colorless and odorless gas. Carbon dioxide is a colorless है, इसका कोई कलर नहीं होता, and odorless, कोई स्मेल नहीं होती. Number 2, it is moderately soluble in water. Okay. Number 3, it changes into a solid. सॉलिड में चेंज होती है एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड. कितने सेंटीग्रेड्स पे होती है? यस, -80 डिग्री सेंटीग्रेड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस. ओके, और जब वो सॉलिडिफाई हो जाती है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हम कहते हैं ड्राई आइस. नंबर 4, इट नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट कंबर्शन. ना ये बिल्कुल भी जो है वो बर्न नहीं करती, ना सपोर्ट करती है कंबर्शन में. नंबर 5, इट इज़ हेवियर देन एयर. ये जो है वो हवा से, एयर से हैवी होती है. ओके, दीज आर द 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके,
Chemical properties of carbon dioxide. Reaction with water. Carbon dioxide dissolves moderately in water and reacts with it. Moderately dissolve हो जाती है पानी में and reacts with it to give carbonic acid. और क्या से प्रोड्यूस होते हैं? कार्बोनिक एसिड्स which turns blue litmus paper red. जिससे ब्लू जो है लिटमस पेपर वो रेड हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड. रिएक्शन विद लाइम वाटर. लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है. लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू लाइम वाटर, जब उसे लाइम वाटर में डाला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द सॉल्यूशन विल टर्न मिल्की. तो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है. जैसे कि दूध का कलर होता है ना, मिल्क का, इस टाइप का वो सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की. बिकॉज, क्यों हो जाता है? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट्स इज फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स बन जाते हैं विच इज़ वाइट, जिनका कलर क्या है? वाइट है. एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, और वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते. इनसॉल्यूबल इन वाटर वो चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, और सॉल्यूबल इन वाटर जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं. तो ये जो हैं दे आर वाइट एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर. क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को जब मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. Uses of carbon dioxide. Today now we read about uses of carbon dioxide. It is used in fire extinguishers, it is used in carbonated drinks, health salts and artificial rain. Okay, number 1, fire extinguishers. Many types of fire extinguishers depends on the production of carbon dioxide to put out fires. This is because carbon dioxide does not support combustion. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो combustion में support नहीं करती. The fire extinguisher contains acid. इसमें acids होते हैं in one compartment, एक compartment में, and sodium carbonate in another, और दूसरे compartment में क्या होता है? sodium carbonate. To produce carbon dioxide, the cap on the extinguisher is pushed. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कैप को पुश किया जाता है इनटू ब्रेक द सील ऑन द एसिड, ताकि एसिड की सील जो है वो ब्रेक हो जाए कंपार्टमेंट, सो दैट इट रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. और जब वो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जो आपको मदद करता है आग को बुझाने में. ओके, तो दिस इज़ द यूज़ of carbon dioxide as fire extinguisher. Now come to carbonated drinks. Carbon dioxide is used to give the refreshing and characteristic taste to soda water and other carbonated drinks. जितने भी हम ड्रिंक्स पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं जितने भी, तो these are made from carbon dioxide. Okay. Now health salts. What are health salts? Many health salts like ENO, as you all know about ENO, or fruit salts, are composed of a mixture of sodium bicarbonate. ये बनते हैं a mixture of sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid in solid form, and it will come in solid form. When these are put in water, जब इन्हें पानी में डाला जाता है, the acid reacts, तो ये acid react करते हैं with the carbonate producing carbon dioxide. कार्बोनेट के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. दिस हेल्प इन डाइजेशन, और एंड दिस लिक्विड हेल्प्स यू इन द प्रोसेस ऑफ योर डाइजेशन. नाउ द लास्ट आर्टिफिशियल रेन. ड्राई आइस, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू seed clouds to produce rain. It is also carbon dioxide is also used to make artificial rain by using dry ice. Now today we read about the carbon dioxide cycle. Okay, my question is, what is carbon dioxide cycle? Carbon dioxide cycle क्या होता है? Carbon dioxide cycle, as CO2 carbon dioxide is utilized by plants.
प्लांट्स क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, CO2 को यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम द एयर, कहाँ से, हवा में से, एयर में से, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड, टू प्रिपेयर देयर फूड, ओके। CO2 गोज़ बैक टू एयर, अब ये जो है एयर में वापस कैसे जाती है, ड्यू टू, किस तरह जाती है, ड्यू टू रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। रेस्पिरेशन मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो वी exhale carbon dioxide which mix in the air, and when we burn fossil fuels, so the carbon dioxide releases and mix in the air. The CO2 being produced is more than that being consumed. CO2 की जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रही है जितनी कि उसकी नीड नहीं है। Hence the amount of carbon dioxide in the air is increasing. इस वजह से हवा में, एयर में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, रिजल्टिंग इन द ग्रीन हाउस अफेक्ट। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है उस पर ग्रीन हाउस अफेक्ट। नाउ व्हाट इज़ ग्रीन हाउस अफेक्ट? सो आई विल टेल यू व्हाट इज़ ग्रीन हाउस अफेक्ट। Greenhouse effects. What is greenhouse effect? The greenhouse effect is a natural process. ये एक बिल्कुल natural process है। Natural यानी कि कुदरती तरीका है। That warms the earth, जो कि earth को क्या करता है, warm करता है, और earth के surface को warm करता है। That warms the earth surface. When the sun's energy reaches the earth, जब सूरज की रोशनी अर्थ पे पड़ती है, ओके, अर्थ पे पड़ती है, अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, तो उसमें से कुछ जो है वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस पे चली जाती है, एंड द रेस्ट इज एब्जॉर्ब, और बाकी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड रेडिएटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ओके, और जो बाकी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर रेडिएटेड हो जाती है इन द ग्रीन हाउस गैसेस में। द एब्जॉर्ब एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर, फिर ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती है, वार्म करती है, एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एटमॉस्फेयर को भी वार्म करती है, और जो है हम सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सरफेस है उसको भी वार्म करती है, ओके। तो दिस इज greenhouse effect. I repeat, the greenhouse effect is a natural process that warms the earth's surface. When the sun's energy reaches the earth's atmosphere, some of it is reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the earth. As I'll show you in a picture also how the greenhouse effects works. Now I explain you the greenhouse effect through this diagram, okay? The greenhouse effect. First of all, you see the sun, okay? This is the sun. This is the black line, as you see, is the atmosphere. It's the atmosphere, okay? And the blue one is the earth, okay? The three main parts: the sun, atmosphere, and the earth, okay? Then what happens when the sun's energy, जब सूरज की रोशनी पड़ती है अर्थ पे, reaches the earth, जब अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ एटमॉस्फेयर पे, some of it is reflected back to space, तो कुछ जो एनर्जी है ना जो सन से आई है अर्थ पे वो रिफ्लेक्ट वापस चली जाती है स्पेस की तरफ, ओके। कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, एंड रेस्ट ऑफ इट, और जो बाकी है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब एंड री रेडिएटेड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। ये जो एब्जॉर्ब होती है, द एब्जॉर्ब एनर्जी, ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वार्म्स द अर्थ
एटमॉस्फेयर, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म करती है। एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमारे अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर को क्या करती है, वार्म करती है। एज यू सी, some sunlight that hits the earth is reflected, some becomes heat. जो सन से रेज आई हैं अर्थ पे, कुछ रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस और कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में अर्थ के मिक्स हो जाती हैं। एंड नाउ एज यू सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म। ये जो है हीट को ट्रैप करते हैं ताकि अर्थ को वार्म रख सकें। ओके, तो दिस pictures clearly shows you how the greenhouse effect works on the earth, and through this picture I think you should clearly understand the greenhouse effect.